गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सुबह सुबह आए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी उठ करके बिस्तर से, क्योंकि सर्दी में बिस्तर को आप नहीं पकड़ते, बिस्तर आपको पकड़ लेता है कि मत जा थोड़ी देर और सो जा, तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ये हीट से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। देखो आज दैट इज थर्मोडायनामिक्स। Thermodynamics. First of all, there is a question in our mind that what is thermodynamics? So you know very well, बड़ी easy definition हमेशा हम बोलते हैं कि it is a branch of physics. कुछ भी हो, सब में यही लाइन जोड़ देते हैं, यहाँ भी जोड़ देंगे. So thermodynamics is a branch of physics which deals with the study of concept of heat and temperature and interconversion of heat and various forms of energy. Thermodynamics deals with the concept of heat and temperature and interconversion of heat and other forms of energy. It mainly deals with transformation of heat into mechanical work and vice versa. It means in thermodynamics what we are doing or what others they did, they deals with the transformation of heat into mechanical work and vice versa. So surely for thermodynamics, you need a thermodynamic system. इंदौर के आकाश में इंदौर पंजा अब 5वीं बार आएगा। देखो ये गाना चल रहा है सुबह सुबह, जो नहीं उठे होते वो भी उठ जाते हैं। सो thermodynamic system. What is thermodynamic system? Any system is consist of infinite number of particles interacting one another. So in the same way, thermodynamic system means a system, it is an assembly of very large number of particles which has certain value of pressure, temperature, volume, etc. क्योंकि थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, बहुत सारी चीजें होंगी। So thermodynamic system is an assembly of very large number of particles possess certain value of pressure, volume, temperature and other thermodynamical variables. तो देखो एक नई चीज आ गई, thermodynamical variables, ये नई चीज आई देखो, thermodynamical variables. So the pressure, temperature, volume, entropy, enthalpy, these are thermodynamical variables. ये क्या है? Thermodynamical variables. Then you know very well, we have open system, we have closed system. So open system you know, but before that I'll give you surrounding. Surrounding ज्यादा important है पहले तो. Surrounding means anything outside the system which directly or indirectly affect the system is known as surrounding. जैसे अभी आप पढ़ रहे थे तो आपको सुनाई देने लगा इंदौर बनेगा नंबर 1, इंदौर बनेगा नंबर 1, तो आपकी थोड़ी, या फिर आपके घर में मम्मी बहुत बढ़िया पकोड़े और पोहे बना रही है आपके लिए, मेरा बेटा और बेटी उठी है, सैंडविच खाएंगे, नाश्ता खाएंगे, मैगी खाएंगे, आटा नूडल खाएंगे, तो उसकी सुगंध से आप विचलित हो जाते हैं, तो वो सराउंडिंग है। बट इफ यू आर सिटिंग इन ए रूम इन विच दैट रूम इज साउंड प्रूफ, तो आपको कोई आवाज नहीं आएगी, तो आप क्लोज सिस्टम हो गए। तो अभी आप ओपन सिस्टम हो। ओपन सिस्टम मींस आपको सराउंडिंग जो है अफेक्ट कर रहा है। तो सराउंडिंग बता रहा था मैं, क्या मैं आगे कोई और भावनाओं में बह के पहुंच गया। सराउंडिंग क्या होता है? एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द सिस्टम। डायरेक्टली भी कर सकती है और इनडायरेक्टली भी। which directly or indirectly affect the system is known as surroundings. Okay, then we have open system. So open system is a system
in which exchange of energy between the system and surrounding is possible. यानी ओपन सिस्टम इज अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग, और ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। तुम्हारे पास कोई छोटी बहन तुम्हारी दौड़ी दौड़ी आई, भैया भैया पेंसिल तो देना, जरा मुझे लिखना है, रबर भी चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते आपने उसको भी दे दिया। देखो थोड़ा सा विचलित हुए पर आपने दिया। व्हाट डज इट मीन? यू आर एन ओपन सिस्टम। आप सबकी बात सुनते हो और उसका आंसर भी देते हो। ओके, सो ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम विच in which there is an exchange of energy or heat between the system and the surrounding is possible. तो क्लोज सिस्टम भी होता है, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम। इन क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ thermodynamical variables or energy or heat between the system and the surrounding, just like our watch। आपके हाथ में घड़ी है तो वो ऐसा तो है नहीं कि मम्मी का नाश्ता पसंद नहीं आया तो वो घड़ी धीरे चलने लग जाएगी, या वो बोली कि नहीं नहीं मैं तो मंडे को तेज चलूंगी और ट्यूसडे को धीरे चलूंगी। तो इज इट पॉसिबल? नो, श्योरली नॉट, क्योंकि वो जो सिस्टम है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल, दैट इज सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स है नहीं है, तो वो क्लोज सिस्टम हो गया। क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम, इन क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम नो एक्सचेंज ऑफ heat energy is allowed between the system, it is not affected by the surrounding, isolated भी कह सकते हैं। then एक और चीज होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम बाद में बताता हूं। प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, thermodynamical process। so in thermodynamical process there is change in thermodynamical variables, there is change in thermodynamical variables, pressure, volume, temperature, etc. due to the exchange of energy or not exchange of energy also। अगर आपके अंदर एनर्जी है और वो कहीं नहीं जा रही तो क्या होगा? अरे आपका खुद टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी यूर थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल चेंजेस, बिल्कुल होगा। ओके, सो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस आर प्रोसेस इन विच due to the exchange of heat energy or due to surrounding there is change in thermodynamical variables, right? तो अब मैं आपको मेन बताता हूं कि थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कौन कौन सी हो सकती हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सो नंबर कौन सा हो गया था? 5th 6th हो गया था, 7 आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हमारे काम की। आइसोथर्मल प्रोसेस, it is a isothermal process is a process in which temperature is constant and pressure and volume may change। ये आप लिख लो, है ये काम आएगी आपको। in isothermal process pressure and volume may change but temperature remains constant। in isothermal process pressure and volume may change but temperature remains constant, that is exchange of heat, that is exchange of heat between the system and the surrounding, that is exchange of heat between the system and surrounding is allowed, exchange of heat between system and surrounding is allowed, ये आप याद रखना, करेक्ट। अब इसकी इक्वेशन भी होती है, आइसोथर्मल की एक इक्वेशन भी बनती है, और वो इक्वेशन क्या होती है वो आपको मैं बताता हूं। वी नो फ्रॉम परफेक्ट गैस इक्वेशन, फ्रॉम परफेक्ट गैस इक्वेशन, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन आई एम नॉट गिविंग यू बिकॉज रीना मैडम आपको बहुत बार पढ़ा चुकी होंगी और यू नो वेरी वेल। पीवी इक्वल टू आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी बच्चे बोलते हैं, एन मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आई एम टेकिंग वन मॉलिक्यूल,
So PV equal to RT. Now in isothermal process, temperature is constant, you know very well. As in isothermal process, temperature is constant. Okay. Temperature is constant. R is already constant, universal gas constant. Therefore, PV equal to K or constant. This is isothermal equation state. This is isothermal equation of state. And from here, P is inversely proportional V. So if you plot a graph here volume and here pressure, so the graph should be like this. And this is known as indicator diagram. इसको बोलते हैं indicator diagram. Okay. So look here, when pressure is more, volume is less. So this is compression हो रहा है या expansion हो रहा है, बताइए. Expansion नहीं. हाँ. Expansion. Because volume increases, pressure decreases. So this is expansion. Okay. But similarly, सर वो राइट में क्या लिखा है? ये नहीं सर, वो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के ऊपर. This is isothermal equation of state. This is isothermal equation of state. Similarly, if arrow is upward, it means volume decreases and pressure increases. So this will shows you compression. और इनको हम बोलते हैं isotherm. These curves are known as isotherm or isotherm. ठीक है. Also, you know very well, temperature is constant. So suppose for first temperature you are taking, for second temperature, for third temperature, fourth temperature, then what happens to these curves? तो एक चीज और देखने में आई है कि when, ये तो लिखे लिया ना आपने, मिटा देता हूँ. When different temperatures are taken, so isotherm is this one for first temperature T1. Now for second temperature it is T2. For third temperature it is T3, and here T3 greater than T2 greater than T1. It means if temperature increases, the isotherm or the curve, they move away from the origin. टेम्परेचर बढ़ गया तो ओरिजिन से, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होने वाला. टेम्परेचर ज्यादा मतलब बच्चे ये ना बोले कि सर यू आर सेइंग दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हाउ टेम्परेचर इज मोर. It means at a particular temperature we are doing this. And there are certain conditions for isothermal process. So certain conditions means two conditions which are very important. The first condition is the walls of cylinder or the vessel should be perfectly conducting, so that there is an exchange of heat between the system and surrounding. And also number two, the process of compression and expansion should be very slow. बहुत धीरे धीरे, ये धीरे ऐसा नहीं कि एकदम से आपने पिस्टन कर दिया. नो नो, अगर आपने तेजी से किया तो वो एडियाबेटिक हो जाता है. जैसे आपने वो देखी है, जब आप होली आती है, अभी होली आएगी तो फिर आप खेलोगे कि नंदलाल मार पिचकारी होली खेल रहे हैं, तो आप पिचकारी लेके बैठते हैं, तो पिचकारी में भरते हैं आप, या इंजेक्शन देखा होगा आपने, तो आप तेजी से करते हैं. तेजी से करेंगे मतलब दैट इज फास्ट कर रहे हैं, इट मींस एडियाबेटिक. बट इफ यू आर डूइंग इट वेरी स्लो, धीरे धीरे, स्लो मोशन पिक्चर में होता है जैसे, देन दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस.
because we have to provide enough time for the transformation of or exchange of heat between the system and the surrounding. अगर आप doing it very fast तो heat को transfer होने का time ही नहीं मिलेगा, तो temperature constant नहीं होगा. Because if you compress, temperature increases, but that heat should go to the surrounding so that temperature remains constant. And if you expand it, temperature decreases, so system will absorb heat from the surrounding and maintain its constant temperature. कितनी बढ़िया चीज है. ओके बच्चों, सो आइसोथर्मल समझ में आ गया होगा आपको. देन देयर इज अनदर, इसकी बहन प्रोसेस है, सिस्टर इसकी, एडियाबैटिक प्रोसेस. देखिए, in adiabatic process, the exchange of heat between the system and the surrounding is not allowed. The exchange of heat between the system and the surrounding is not allowed. So, pressure, volume, temperature, all may change. क्या लिख रहा हूँ? मेरा स्वेटर अच्छा लग रहा है. थैंक यू. Sir, not allowed क्यों? Not allowed. Adiabatic process, exchange of heat between the system and the surrounding is not allowed. That is, pressure, volume and temperature. Pressure, volume, temperature all may change. तो इसकी इक्वेशन बता देता हूं आपको. एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो एक तो होता है पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर गामा इज एटॉमिसिटी ऑफ गैस and gamma is generally equal to Cp upon Cv. Gamma is equal to Cp upon Cv. पिछली बार दिख ही रहा था कि गलत नहीं करते, दिख रहा था सर. Cp upon Cv. Cp is specific heat of gas at constant pressure and Cv is specific heat of gas at constant volume. Specific heat, you know. The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a gas to 1 degree Celsius is known as specific heat. And specific heat is not only for gas, it is for every material. Also, you know very well, pressure, volume सभी कुछ भी बदल सकता है, तो T और V के बीच भी हो सकता है. TV gamma -1 equal to constant और T gamma -1 T gamma equal to constant. That's right. Check कर लो. So these three equations we can use for adiabatic process, because in adiabatic process anything can change. Also, the graph or the curve is same as an isothermal, क्योंकि इसमें भी प्रेशर वॉल्यूम करेंगे तो वही है. Okay, but what are the conditions for adiabatic? The special conditions for adiabatic process are that system should be perfectly non-conducting, because there is no exchange of heat between the system and the surrounding. So the system is pure non-conducting or isolated or insulated from the surrounding, so that there is no exchange of heat. ये insulated system होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? Insulated. And also the process should be very fast. फटाफट. हीट को टाइम ही नहीं मिलेगा जाने का इधर. तो टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, जो भी वॉल्यूम ऑल्सो चेंज. ओके,
Then we have another process, that is isochoric process. Isochoric सुना होगा नाम आपने. Isochoric process is a process in which volume remains constant. Isochoric is a process in which volume remains constant. It means there is no change in the volume. That is, dV is equal to 0 होता है. In isochoric process, volume remains constant. Similarly, we have isobaric process. Baric process. बाहर होता है इसमें. Here, pressure remains constant. In this process, pressure remains constant. एक और नाम कई बार बच्चे पढ़ते हैं, quasi-static process. So quasi-static process means every process, but this process should be very, very slow. It means the difference between the thermodynamical variable cannot be determined. इतना small होता है. So quasi-static process is very, very small. And so thermodynamical variables generally are same. सेम ही रहते हैं, चेंज ही नहीं होता उनको. एक और चीज होती है, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम. ये तो कई बार पढ़ा होगा आपने. थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स the two systems are said to be in thermal equilibrium if their temperatures are same. जैसे होता है ना कि हमें अभी रात को जैसे सोने घुसते हैं रजाई के अंदर, तो हमें बहुत ठंड लगी होती है. थोड़ी देर के बाद रजाई और हमारा टेम्परेचर सेम हो जाता है. होता है ना. तो मतलब दोनों आप थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, बिकॉज देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडीज रिमेन सेम. आप किसी से हाथ मिलाते हो कि आओ मेरे दोस्त कैसे हो, आओ गले मिलो. थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए. व्हाई? एक्सचेंज ऑफ हीट. एक्सचेंज ऑफ हीट, राइट? देन एंड ऑल्सो the thermal equilibrium concept was given by zeroth law of thermal equilibrium. एक लॉ है zeroth law, आपने कभी सुना होगा. zeroth law of thermodynamics. बड़ा बढ़िया लॉ है. इट गिव्स यू द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर. ये टेम्परेचर के बारे में समझाता है. जैसे देखिए, देयर आर थ्री सिस्टम्स. दिस इज सिस्टम ए, दिस इज सिस्टम बी. A and B are separated by adiabatic wall. Adiabatic wall लगाए. और ये है isothermal wall. Isothermal means conducting wall. ठीक है? That is non-conducting. ये new system C here. This is conducting. Okay, so what is zeroth law of thermodynamics? First of all, मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ. If two systems A and B are in thermal equilibrium with third system, then first two systems are also in thermal equilibrium. If A and B two systems are in thermal equilibrium with third system C, then A and B are also in thermal equilibrium. कैसे? देखिए, A and B they are separated by by conducting wall, isothermal wall with C. तो A और C का टेम्परेचर सेम होगा, because if A temperature is more, it will give heat to the C और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा. And also with B. Now if you remove this adiabatic wall, there is no exchange of heat from A to B or B to A. If you remove this adiabatic wall, there is no exchange of heat between A and B or
B and A. Why? Because they are in thermal equilibrium with C. So they are also in thermal equilibrium. A is a friend of C, B is a friend of C, so A and B are also friends. So this will give you the concept of temperature, that when two systems are in thermal equilibrium, then there is no exchange of heat. It means temperature is the degree of hotness or coldness of a body which determines the direction of flow of heat from higher temperature to lower temperature. क्या बात बताइए कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ही हीट जाएगी। अरे ज्यादा पैसे से कम की तरफ पैसे जाते हैं, वैसे होता नहीं। ज्यादा के पास और इकट्ठे होते जाते हैं, कम के पास और कम। बट हियर इट डज नॉट हैपन। हियर फ्रॉम हाई टेम्परेचर हीट फ्लोज टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर। So this is zeroth law of thermodynamics. It will give you the concept of temperature and direction of flow of heat. Okay? एक और चीज, तुम्हारे पास होते हैं साइक्लिक सिस्टम एंड नॉन साइक्लिक। जीरोथ लॉ का कोई स्टेटमेंट लिखना है या समझ तो आ गया वैसे तो? हाँ हाँ, एग्जाम में नहीं आता, लोग मैं पूछूंगा भी नहीं, आप लोग डरेंगे। सो साइक्लिक प्रोसेस कर देते हैं। साइक्लिक प्रोसेस are the process in which after number of transformation the system again comes to its initial state. जैसे हम सुबह उठते हैं बिस्तर से, बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और खाते हैं, पीते हैं, दिन भर मजे करते हैं, फिर रात को वापस बिस्तर में जाते हैं। इनिशियल स्टेट आते हैं ना, दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है। तो these are cyclic processes. Systems जैसे seasons are also cyclic process. वापस सीजन आते रहते हैं। So the process in which system again comes back to its initial state. जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं हमारी, तो गाड़ी में फ्यूल होता है, फ्यूल जलता है, फिर गाड़ी चलती है, फिर अगेन वो वापस आ जाता है, फ्यूल लेता है, अगेन द सेम प्रोसेस। तो वो साइक्लिक है। क्या है? साइक्लिक। Then we have non-cyclic process in which system does not come back to its initial state, like ripening of a fruit आपका पक गया, ऐसा तो नहीं पक गया तो आप उसको बोलोगे चल कच्चा हो जा, या मम्मी ने आपको पराठा बना के दे दिया तो आपने बोला चल वापस आटा बन जा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा तो नहीं। ठीक है ना? So in non-cyclic process the system does not regain its initial state. Correct? तो बहुत सारी वैसे बताएं इसमें, एंट्रोपी, एंथैल्पी, दैट थिंग्स आर आल्सो देयर, यू हैव लर्न ऑलरेडी योर केमिस्ट्री क्लासेस। तो फॉर अस इम्पोर्टेंट ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। If we have this indicator diagram and we have this curve, so the area under the curve shows the work done. The work done by the system or work done on the system. Here we have sign conventions also, but in first law में बताऊंगा आपको। So the area under the curve gives the total work done on the system or by the system. So that work done we have to find, because isothermal and adiabatic equations are very very important as far as heat engines are there. जितने इंजन है हमारे, रेफ्रिजरेटर, हमारी गाड़ियां, उन सब में यही होती है भैया, आपको पता नहीं है पर होती यही। ओके, so we are going to discuss now work done in isothermal process and adiabatic process. कितना टाइम बचा कृष्णा? 6 minutes 47 seconds 45 सेकंड 44 सेकंड। ठीक है, एक हो जाएगा, चलो अपन एक कर लेते हैं, है ना? देखिए, वर्क डन इन
isothermal process. So for isothermal process, we are taking a cylinder whose walls are at bottom perfectly conducting, पूरा कंडक्टिंग है, और ये भरा हुआ है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस. प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1, टेम्परेचर को T ले रहा हूं मैं. क्यों? बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट. आई टेक T और T1, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ व्हाट हैपेंस, ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू हीट, द पिस्टन मूव्स अपवर्ड्स. थोड़ा सा, जरा सा, ज्यादा नहीं करूंगा, इतना. और ये गया है करीब dx गया है. कितना गया है? dx. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. ओके, सो कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस in a cylinder whose walls and bottom are perfectly conducting. It is fitted with a piston, and airtight and frictionless piston of area of cross-section A. Okay, and initial thermodynamical variables हमने पहले ही ले लिए. Let initial thermodynamical variables are P1, V1, T1 ले लेता हूँ. चलो, आप कहोगे यार T को T1 नहीं ले रहे, अच्छा नहीं ले लिया. ठीक है ना, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाते हैं. ये क्या है सर, इसको लिया ही नहीं आपने, इसको ले लिया. सो माय डियर, माय स्वीट, माय छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन ए सिलेंडर. एंड यू नो वेरी वेल, आइडियल गैस कोई होती नहीं है दुनिया में. कोई आइडियल नहीं होता. जो भी आइडियल होता है वो ऊपर चला जाता है. मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. तो आइडियल बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए. तो आइडियल नहीं है तो हमारे पास क्या रियल गैस होती है, जिनको हम ट्रीट करते हैं एज एन आइडियल गैस. सो कंसीडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन ए सिलेंडर whose walls and bottom are perfectly conducting. क्यों? अरे आइसोथर्मल है ना, तो ये ले भी सकता है और दे भी सकता है. मतलब ये आपका ऐसा टिफिन है जो खुला हुआ है. आप किसी को दे भी सकते हो, उस टिफिन में दूसरा व्यक्ति अपना सामान, कि मैं सैंडविच लाया हूँ, ले थोड़ा सा सैंडविच ले ले, और तू पकोड़े लाया, चल दे दे मुझे. ये एक्सचेंज होता रहता है, जो आजकल आप लोग मिस कर रहे होंगे. और ऐसे बच्चे और मिस करते हैं जो टिफिन ही नहीं लाते हैं, और दूसरे को पता ही नहीं लगता कि उसका टिफिन खाली हो गया और वो खा गया. दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स. ये होना चाहिए. इट इज फीटेड विथ एन एयर टाइट एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए. पिस्टन यू नो वेरी वेल, जो इंजेक्शन में लगा होता है. पिस्टन ऐसे आगे पीछे करते हैं, देखा है ना आपने, और पिचकारी में लगा होता है. दैट इज पिस्टन. Let initial thermodynamical variables are P1, V1 and T1. Okay. तो अब आगे चलते हैं. तो you know very well, हमें वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन. बट वी फिजिक्स स्टूडेंट्स आर जनरली वेरी वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट ऑल्सो. वी आर ऑलवेज डूइंग ए वेरी स्मॉल वर्क डन, और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं. बड़े होशियार होते हैं.
तो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मेरा परसों काम आएगा। अरे यार क्या हो गया, चौक टूट गया। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बच्चों, आप भाग मत जाना। जो सो रहे हैं वो भले ही सोते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। सर ये कराने में कितना टाइम लगेगा आपको, मतलब कंप्लीट करने बस में? बस कितनी मिनट बचे? 1 मिनट ही बचा है। 1 मिनट बचा है तो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, पहले लिख तो लूँ मैं। यस सर। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, मतलब क्यों डिस्प्लेसिंग? एक्चुअली इसके ऊपर हमने थोड़े वेट रखे हुए होते हैं। क्या रखे होते हैं? वेट। एंड धीरे धीरे हम वेट निकालते हैं, एक साथ नहीं, छोटे छोटे, ताकि प्रोसेस बहुत धीरे हो। पिस्टन से धीरे से ऊपर जाए, धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं लगे। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग piston through very small displacement dxa, look here, दिख तो रहा है ना? यस सर। दूर से नहीं, पास कर दो। सर क्लियर है, दिख रहा है। दिख रहा है? Okay. So the small amount of work done in displacing piston through very small displacement dx. So work done का फार्मूला लिखेंगे, and you know very well what is work done. Work done आपको अच्छी तरह पता है, क्या होता है बताओ बच्चे? Work done is equal to force into displacement. So work done, force and displacement is dx. But ये कोई मैकेनिक्स तो पढ़ना है, तो वी नीड प्रेशर या प्रेशर वाली बात आनी चाहिए। तो याद है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है? तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो दिस इज प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएक्स। एंड जैसे ही डीएक्स और एरिया ने एक दूसरे को देखा तो उन्हें सीमा मैडम और योगी सर याद है कि अरे ये तो वॉल्यूम बन गया। क्या बन गया? वॉल्यूम। बट डीएक्स इज स्मॉल, तो छोटा सा वॉल्यूम बना। तो दिस इज डीवी, थ्री डीवी। इट मीन दिस इज द फार्मूला वर्क डन मेरे बच्चों, हमेशा ये आता है सी इंटू डीवी, ऑलवेज इट कम्स। बट यू हैव टू फाइंड टोटल वर्क डन बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2। वॉल्यूम चेंज होगा, डी है, तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग फ्रॉम V1 टू V2, तो टोटल वर्क डन निकाल। Therefore, total work done in increasing volume from V1 to V2, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। dw इंटीग्रेशन 0 टू w आइसो लिख देते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन pdv एंड वॉल्यूम इज V1 टू V2। करेक्ट बच्चों? यहां तक तो क्लियर हो गया। नाउ मेरे पास जगह नहीं है, मुझे उधर जाना पड़ेगा। अगर ये लिख लिया हो आपने तो मैं वहां जाऊँ। Sir, 2 minutes. हाँ हाँ, 1 मिनट दूंगा, 2 तो नहीं, 2 ज्यादा होते हैं। मैगी बन जाएगी ना, फिर खानी पड़ेगी। तो आजकल कौन सी वाली मैगी पसंद है आप लोगों को? एक रेमन नूडल्स आती है, चिली फायरी चिली, रेड कलर की बनती है। एक्चुअली मैं खा नहीं पाता, मेरा बेटा ही खाता है। ठीक है, देखने को तो मिल जाती है। मिस्टर अथर्व, आगे जाए क्या? हो गया? यस सर। ओके, ये तुम्हारा फोटो है या तुम खुद असली में हो? सर फोटो है।
अरे यार असली लग रहा है यार, तू क्या फोटो है तेरा यार, असली जैसा। हो, आगे चल रहा हूँ मैं गुड़िया। Yes, sir. हो गया. सो इंटीग्रेशन W आएगा dW का, तो 0 to W आइसो, नहीं अभी मत करो, चलो पहले यू नो वेरी वेल देयर इज P dV, P इज देयर, तो P की वैल्यू तो कहीं ना कहीं से रखनी पड़ेगी, एंड दिस इज आइसोथर्मल इक्वेशन. सो फ्रॉम isothermal equation, of state PV equal to K होता है, P equal to K upon V. Okay. Now there is a question in your mind कि sir why you are substituting the value of P? Actually you have to integrate with respect to dV. तो V वाला होगा ही नहीं तो इंटीग्रेट क्या करोगे, P थोड़ी हो सकता है इंटीग्रेट. If you have to integrate x, you need dx. If you integrate dv, तो dv के लिए आपको साथ में v चाहिए होगा, तो v हम निकाल रहे हैं, ये आ गया. सो इसको इक्वेशन क्या दे दूं, ये इक्वेशन से 1 हटा दूं, चलो इसको 2 दे देता हूं, एंड दिस इज 3. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, या 2 कहाँ आ गया यार, इधर आ जाता है. सर इक्वेशन 1 कौन सी है? इक्वेशन 1 थी dw इक्वल टू पी dv. अभी एक बार और दिखा दूंगा आपको समझ में आ जाए. सो दिस इज dw का w आइसो, एंड नाउ p की जगह क्या रखा, k अपॉन v dv, v1 to v2. so this is w iso, k is outside and it is 1 upon v dv, and 1 upon v is log v. log x होता है आपको याद होगा, v1 to v2. तो w iso इक्वल टू k. अब यार k आ रहा है आपको, तो k की वैल्यू नहीं पता है, तो वैसे जनरली rt आता है k इक्वल टू, क्या आता है k इक्वल टू rt. एक काम करते हैं, चलो इसको यहां से ठीक कर लेते हैं. आइसोथर्मल मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी. फ्रॉम परफेक्ट गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT, तो ये RT ले लेते डायरेक्ट, तो एक सब्स्टिट्यूशन और बच जाएगा हमारा, ठीक रहेगा ना. देखो एक और सब्स्टिट्यूशन बच गया. So now we are substituting upper limit minus lower limit, log e v2 minus log e v1. This is isothermal equation, and you know very well log m minus log n is log m upon n. So this is log v2 upon v1. ये वर्क डन आ गया वो अपने पास, क्या आ गया ये वर्क डन. तो थोड़ा सा आप लोग परेशान हो गए होंगे कि सर ने बड़ी जल्दी जल्दी बताया, मैं फिर से बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल, बच्चों बाद में लिखना, उधर देखो, देखो ये आ गया, ये देखो dw इक्वल टू पी dv आ गया था हमारा. ओके, देन टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग वॉल्यूम फ्रॉम v1 टू v2, इंटीग्रेशन dw किया, 0 टू w आइसो लिमिट इक्वल टू पी dv का इंटीग्रेशन, एंड dv की लिमिट v1 टू v2. नाउ हियर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p. So we can substitute with the help of isothermal equation also, or we can substitute with the help of perfect gas equation. तो मैं perfect ले रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, बार बार मुझे काम नहीं करना पड़ेगा. तो देखिए, रुकिए, फ्रॉम परफेक्ट गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट ये लिखा, ये नहीं होना. फ्रॉम परफेक्ट गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT, so P equal to RT upon V. And now putting this value in equation number 2,
So from equation 2 and 3, dw का w आ गया, 0 to w iso, and P is RT upon V, V1 to V2 dV. RT is outside, यही निकाल देता हूँ सर. So integration V1 to V2 1 upon V dV. और एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा, याद ना हो तो बता दूं. इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx इज log x होता है. So 1 upon V dV is log V. Log E लगाया. Log E means Neperian log, natural log E. Then RT and upper limit minus lower limit. Log E V2 minus log E V1. Correct? There is one more formula. Log M upon N equal to log M minus log N. It means when log M minus log N is written, it is log M upon N. तो इसको लिख देते हैं log V2 upon V1. So this is the work done in isothermal process, but this is Neperian log and we want common logarithm जो हमारा होता है log base 10. So इसको चेंज करते हैं. W iso equal to, थोड़ा दिखेगा नहीं है, इधर कर देते हैं, बहुत जगह अपने पास. W iso equal to 2.3026 RT log E, नहीं log E नहीं है, V2 upon V1. It means मैंने इसको कॉमन लॉगरिथम में चेंज कर दिया. log बेस 10 हो गया ये. By multiplying 2.3026 RT log V2 upon V1. E हट गया, देखो आप क्या हो गया, E हट गया, ये है नहीं है. Okay, this is work done in isothermal process. Also you know that in isothermal process PV equal to constant. In isothermal process, PV equal to K, यानी P1 V1 equal to P2 V2 और P1 upon P2 equal to V2 upon V1. देखो, it means in place of V2 upon V1 we can write P1 upon P2. ये हम लिख सकते हैं. तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी, और W iso equal to 2.3026 RT log P1 upon P2. It means you can use this equation also, because in isothermal pressure and volume both change. So if volume change, you can use that equation. If pressure, if you want to pressure calculation, then you can use this one. One more thing, when work is done, heat is there. Heat के बिना नहीं होता काम. अगर आपने हाथों को ऐसे किया, संगठन सर करते हैं, आपने देखा होगा. What does it mean? Heat generates. सुबह सुबह करते हैं ना, जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं तो बिस्तर से उठने के पहले सबसे पहले हाथों को ऐसे रगड़ना चाहिए और अपनी आईज और चेहरे पे लगाना चाहिए. एनर्जी मिलती है और आप अच्छे बनते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं. तो सुबह सुबह उठ के करना, तो मैं भी याद आऊंगा कि मोटे ने कहा था ऐसे करना है. ओके, इन टर्म्स ऑफ हीट भी लिखता हूं. चलो, इन टर्म्स ऑफ हीट, तो आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं. W इज प्रोपोर्शनल टू H. जितना वर्क करोगे उतनी हीट होगी, और इसे कहते हैं W इज इक्वल टू JH. J मीन्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. J is mechanical equivalent of heat. So heat is equal to W upon J. So heat is equal to W iso upon J. तो बस ये पूरा आंसर वही आ रहा है. Only you have to write J upon J RT log V2 upon V1. And this is equal to the area under the curve. This is equal to area under the curve.
तो ये वर्क डन हुआ ही ना आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा? Yes, sir. तो एडियाबेटिक आज नहीं करवाते, आप थक गए, आपकी सांस फूल गई लग रही है मुझे। No, sir. सुबह सुबह के टाइम कोई नहीं नहीं, सोता। अच्छा लग रहा है। तो अगर बोले तो मैं एडियाबेटिक करवा दूं, पर चलो मेरे को मीटिंग में जाना है ना। ओके, wait. थैंक यू वेरी मच। लिखना है मेरे लिख को। लें आप लोग? हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है राइट। थैंक यू सर। Yes, ठीक है sir. बच्चा, Yes. चलो बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, Thank you, sir. ऑल द बेस्ट।